Hello guys, welcome back to my NRM Wala channel and day 9th. I am your watershed trainer. I am Rahul Yadav and your watershed trainer. And guys, today we are going to discuss about the watershed area. So definitely you have already seen in the papers and any books, but now we are going to discuss on the board and how the watershed area you can see. So let us come and play with us and see the video. So dear friends, this is the watershed area and we have already discussed about the watershed treatments like area treatments and drainage treatments and along with the activities. So the activities, the name of area treatments you have already heard that farm mending, plantations and SCT, CCT along with the dug wells and farm ponds. So and another video you have already seen and heard about that the drainage treatments like of check dams, earthen check dams and along with the gabion and gully plugs. So now we are going to discuss that we have already seen on the fields and along with the papers, but how the all activities including all activities how see on the one papers or one boards. So dear guys, you can see this area of the ridge area. The ridge area, it means that the highest point of the watershed villages, it's called of the ridge area. And another things, this is the watershed area. Watershed area, it means that the water comes through the clouds and this is the parts of the ridge and this is the part of the valley. So from ridge points to valley points, the water travels from the ridge and comes down in the valley and go out from the another watershed area. So this is the ridge lines, these lines, ridge lines and this is also ridge lines, right? This is the ridge line and this is the clouds and you can see the rainfall. It means the rainy seasons and rainfall it's continuously. So you can imagine that when comes the raining waters, first drop in the ridge area and ridge line. So I hope you are understand. And the water comes through the small drainage. So you have already seen the videos of the drainage order. This is the first order drainage and another is the second order drainage. So when we are called that second order drainage, when the first order drainage and first order drainage submits on the any joints point. So you can see the first order drainage and first order drainage submits on the here. So now you can call the second order drainage from here to there. Okay. And this is the structure of the LBS. You can see loose bowl structure or gully plug structure. When the dimension length is less than of the 8 meters, you can say the gully plug structure, and the dimension of the more than 8 meter, so you can say the loose boulder structure. And this is the summit points. There the drainage comes meets on this point and this is the drainage line. Okay, so you can see the drainage line. This is the ridge line, first order streams and these are structure of the
loose boulder structure or gully plug structure. And you can also see these are the staggered contour trench. You can already hear, you have already heard that this is the watershed area. It means the year of the slope between 10 to 25, where the slope of the land 10 to 25, between the 10 to 25, there we constructed the staggered contour trench or CCT. So this is the whole of the watershed area, and you can see the all activities which are constructed in the watershed area. Okay. Now we are here. So this is the drainage line, and you can call the gabion. The gabion structure is constructed on the second order streams, and then when you comes on down sides, so you can see the earthen check dams. Earthen check dams, it is the mitti ka bandh, and then the dike. So डियर फ्रेंड्स, आज ये जो वाटरशेड एरिया है, आप इसको समझ रहे होंगे कि कैसे जो है पानी आता है और बारिश का पानी कहाँ पर गिरता है। हम लोग जो है जहाँ पर 10 to 25 डिग्री स्लोप होता है, वहाँ पर हम लोग जो है स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण करते हैं, और इफ मोर देन द 10 to 25% slope, there we planning of the plantation. तो our plans that कि जहां पर 25% के आसपास का जब स्लोप होता है तो हम लोग वहां पर प्लांटेशन करते हैं। और ये जो है 10 to 25 हो गया। फिर आप जब नीचे आएंगे तो आपको कंटूर बंड दिखेगा। कंटूर बंड, इसका मतलब ये है कि पानी को जो है हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग जो है दौड़ते हुए पानी को चलाना सिखाएंगे, चलते हुए पानी को हम रोकना सिखाएंगे, और रोके हुए पानी को हम जो है छिपाना सिखाएंगे। तो ये जो है आप सोच रहे होंगे कि जब पानी यहाँ से दौड़ेगा तो इसको जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से इसको जो है पानी के फ्लो को ब्रेक किया जाएगा, ब्रिज किया जाएगा, ताकि जो है पानी का स्पीड जो है कम हो सके। फिर ऐसे स्ट्रक्चर में फिर हम लोग उसको ड्रेनेज लाइन में गेबियंस के द्वारा वो करेंगे, कुछ ECDs बना देंगे, कुछ जो है चेक डैम बनाएंगे। चेक डैम में जो है स्टोरेज ऑफ वाटर होगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग चेक डैम में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका ये पानी जो है हार्वेस्टिंग होगा, ये हार्वेस्टिंग वाटर है, तो ये आपको पानी दिखेगा यहाँ पर। और फिर जो है भूमिगत डाइक बनाते हैं, तो ये डाइक के माध्यम से जो है पानी पर्कुलेट होगा, और ये जो डगवेल हैं, ये डगवेल जो है वो उसको जो है क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। तो वाटर टेबल जो है इंक्रीज होगा ये पूरे वाटरशेड एरिया के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है एक वाटरशेड एरिया को देख सकते हैं ऑन द बोर्ड, और इसको जो है हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। अगर इस तरीके के हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो फिर जो है हमें कहीं ना कहीं जो वाटर स्कैरसिटी है उससे जो है हमको एक छुटकारा मिलेगा। तो ये अलग अलग है। फिर इसके बाद में बहुत सारे इंटरवेंशन मैंने बताया। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ ड्रेनेज लाइन के आसपास जो है आपका फार्म लैंड है, तो फार्म लैंड में हम जो क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे फार्म बंडिंग बना देंगे, इसको हम फार्म बंड बोलेंगे। इस तरीके से ये फार्म बंड हो जाएंगे, या स्टोन बंड भी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये फार्म बंड हो गया। तो आप देखिए कि कौन कौन से हमने इंटरवेंशन एरिया और ड्रेनेज स्टेटमेंट में बात की थी। तो प्लांटेशन हमने सबसे पहले बात किया था। प्लांटेशन के बाद में हमने बात किया था SCT या CCT, दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। और SCT आप देख रहे हो कि
स्टेगर्ड है, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, इस तरीके से। तो हम पूरा ब्रीफ डिटेल्स जब एससीटी को लेकर बात करेंगे तब हम समझेंगे कि एससीटी क्यों ऐसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। ये जो है ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर के बाद में ये ड्रेनेज चालू होता है। ये ड्रेनेज भी जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ड्रेनेज जब बनेंगे तो फिर हम इसमें बात करेंगे कि जो चेक डैम है वो चेक डैम का कंस्ट्रक्शन कहाँ किया जाता है, कौन से ऑर्डर में कितना स्लोप होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो है स्लोप है 8 to 16% जो है, अगर स्लोप होता है तो हम लोग गली प्लग बनाते हैं। और ऐसे ही जो है अगर आपका गेबियन है तो गेबियन जो है 6 to 15% स्लोप में जो है हम लोग गेबियन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्लोप हमेशा परसेंटेज में ही हम लोग वाटरशेड एरिया में परसेंटेज में ही पूरा काउंट करने वाले हैं, तो इसलिए जो है हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का एक वाटरशेड एरिया है। उम्मीद करता हूं आपको कि ये वाटरशेड एरिया समझ में आया होगा। और जो इसके अलावा जो एक्टिविटीज है वो हम मार्क करेंगे कि कहां पर हम लोग बना सकते हैं। अभी जैसे ये अगर फार्म फील्ड है तो हम लोग ऐसे क्षेत्र में जहां पर आपका आउटलेट पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर स्लोप कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है फार्म पॉन्ड बना देंगे। ये फार्म पॉन्ड दिखेगा आपका, राइट। फार्म बंड हो गया, ऑब्लिक एसबी हो गया, स्टोन बंड बोलेंगे, एफपी मतलब फार्म पॉन्ड हो गया। फिर जब आप देखेंगे कि ड्रेनेज के आसपास जो है आपका रेसिडेंशियल एरिया अगर है तो ये रेसिडेंशियल एरिया से जब आपका पानी जो है निकल के जाता है तो हम लोग यहाँ पर हेडपंप रिचार्ज या इस तरीके से रिचार्ज पिट भी बना सकते हैं। तो ये जो है हेडपंप रिचार्ज हो जाएगा, रिचार्ज पिट बन जाएंगे। ये सिटी, सीसीटी, चेक डैम, ईसीडी और डाइक और डगवेल, इस तरीके के लगभग जो है वाटरशेड एरिया में हम लोग एक्टिविटी का जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो दोस्तों ये ड्राइंग आपको समझ आई होगी, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आज हमने एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से डे 9 में ये सारी डिस्कशन की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।